Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes. Today is maths lecture number 9, class 8, presented by Ms. Rakshi Ramzan, SS Mathematics in Division Public School and College Sahiwal. At the end of this lesson, you will be able to know about distributive law through Venn diagram. In unit number 1, operations on sets, we will discuss today distributive law through Venn diagram, distributive law of union over intersection, and distributive law of intersection over union. Exercise 1.3, question number 3, A, part 3 and 4, question number 3, B, part 3 and 4. Students, in previous lecture, you already know about distributive law. Distributive law of intersection over union is if A, B and C are three sets, then A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, which is called distributive law of intersection over union. Now, distributive law of union over intersection, if A, B and C are three sets, then A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, which is called distributive law of union over intersection. In exercise 1.3, we have given three sets and verify the law through Venn diagram. Here, A is a set which consists of elements 2, 4, 6, 8, 10 and 12, and B is a set which consists of elements 1, 3, 5, 7, 9 and 11. And here is another set C which consists of elements 3, 6, 9, 12, 15. We have to verify distributive law of union over intersection of sets and distributive law of intersection over union of sets. Now students, here we have given A set which consists of elements 2, 4, 6, 8, 10 and 12, and B set which consists of elements 1, 3, 5, 7, 9 and 11, and also here is a C set which consists of elements 3, 6, 9, 12, 15. Students, first of all we will see these sets are disjoints and overlapping sets. For disjoint and overlapping set, first we see here their intersection A and B set, intersection of A and B which is equal to empty set. We show these two sets are disjoint set because there is no common element between A and B. And similarly, we can see in sets B and C, there are common elements between B and C. Here is 3 and 9 are common elements between C and B. So we can say that these are overlapping set, but neither B is a subset of C and C is a subset of B. Now we will see A intersection C which is not equal to empty set. It means it represents overlapping set because the intersection is not empty, and we can see here there are common elements between A and C is 6 and 12. So these are overlapping set. For Venn diagram, first we see disjoint and overlapping set. Here A intersection B is a disjoint set, B and C an overlapping set. Here is sets A and C are also overlapping set. Now student, distributive law of union over intersection of set. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. First we solve left hand side. यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है जिसमें है A यूनियन B इंटरसेक्शन C. सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C मालूम करेंगे और B इंटरसेक्शन C मालूम करने के लिए सबसे पहले हम B सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और C सेट लिखेंगे. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने दोनों में से सेम एलिमेंट्स को लेना है. जैसे कि हमारे पास इन दोनों में से सेम एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 3 और 9. ये हमारा है B इंटरसेक्शन C. अब हम इसका यूनियन लेंगे A के साथ. देखें A यूनियन B इंटरसेक्शन C. सबसे पहले हमने A सेट लिखा यूनियन देन B इंटरसेक्शन C. अब हम इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे क्योंकि यूनियन और बिकॉज यूनियन is a combination of elements of both the sets. We combine the elements of both the sets and we get the resultant set 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 and 12. Students, we will see these sets on Venn diagram. How can we represent Venn diagram of left hand side?
see here Venn diagram of left hand side. To draw it, first we draw a rectangle. In rectangle we have a universal set. Now we show sets A, B and C by circle. There is circle A, here is circle B, and this is circle C because it is overlapping sets. Now here is set A, and this is set C, and this is set B. Here A set represented by elements 2, 4, 8, 10, and C has elements 15, and B has elements 1, 5, 7 and 11. Now students, we have show here 6 and 12. 6 and 12 are the common element between A and C, and 3 and 9 are the common elements between B and C. Now we will show the operations. Here we show B intersection C. The red lines indicate this portion is a represent the B intersection C. ये बच्चों, ये जो रेड कलर में हमारे पास ये पोर्शन है, ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है. अब हम ए यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रेड लाइंस हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को. तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है उसे हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया. ये रेड लाइन्स और ये रेड लाइन ये हमारे पूरे ऑपरेशन को शो कर रहे हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को. और यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर रेड लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड. Here we have right hand side A union B इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी. सबसे पहले हमने ए यूनियन बी मालूम करना है, जिसमें हम पहले ए सेट लिखेंगे, यूनियन फिर बी सेट लिखेंगे. यूनियन का मतलब होता है कि हमने इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है. तो जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12. अब हम ए यूनियन सी मालूम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे फिर यूनियन सी सेट लिखेंगे. अब हम इन दोनों के एलिमेंट्स को जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा 2 3 4 6 8 9 10 12 15. अब हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी के जो सेट है उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे. जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास इसका ए यूनियन बी सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 which is represented by A intersection A union B set and intersection A union C set. A union C set contain elements 2 3 4 6 8 9 10 12 15. अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों सेट्स का. जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 4 6 8 9 10 12. अब बच्चों ये तो हमने मालूम किया राइट हैंड साइड. अब हम इसकी वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलें वो देखते हैं. वेन डायग्राम राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है. सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा करना होता है, उसके बाद उसके अंदर यूनिवर्सल सेट. अब हमारे पास जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेंगे सेट ए को, और ये बी सेट ए और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कलर्स जो हैं वो सेम हैं. ये कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ए यूनियन बी है. और जब हम उसके बाद जब हम ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उससे पहले हम कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 6 और 12 है. और उसके बाद हमारे पास 3 और 9 जो कि कॉमन एलिमेंट्स हैं बी और सी के, और ए और सी के कॉमन एलिमेंट है 6 और 12. ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रीन सर्कल से. अब हम लाइंस के जरिए शो करते हैं इनका रिजल्टेंट ऑपरेशन. यानी हमारे पास दीज लाइंस रिप्रेजेंट A यूनियन सी. दिस लाइन रिप्रेजेंट A यूनियन सी. हमने A यूनियन B को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, जबकि हमारे पास जो ये लाइंस हैं ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं A यूनियन C को. अब हम उसके ऊपर जो ब्लैक लाइंस हैं जो ड्रा करते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करेंगी कि हमारा रिजल्टेंट सेट क्या आया था. यानी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का जो रिजल्टेंट हमारे पास आया था उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक लाइन से. नाउ स्टूडेंट्स, we have here A union B intersection A union C. In the box we can see here black and red lines, and green portion or green portion and black portion represent A union B intersection A union C. This is हमारे पास right hand side of Venn diagram. Now we will see from figure 1 and 2. We have left hand side is equal to right hand side, that is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Now students, we will discuss distributive law of intersection over union, that is A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. अब हम इस लॉ को वेरीफाई करेंगे उन्हीं सेट को इस्तेमाल करते हुए.
सबसे पहले हमने देखा कि हमने फॉर 3 सेट्स एंड 3 सेट्स हमने तो कोई से 3 सेट्स में सबसे पहला काम क्या करना है, हमने चेक करना है आइदर दी सेट डिसजॉइंट है ना ओवरलैपिंग सेट है। हमने जिस तरह पहले देखा था कि सेट ए विच हैज़ एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 एंड 12, सेट बी हैज़ एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 and 11 and set C has element 3 6 9 12 15. Now we will see, first of all we will see A intersection B is equal to empty set, which represent this is a disjoint set because there is no common element between A and B. Now we will see here B intersection C is not empty because there is common element 3 and 9. This is a common element and the intersection is not empty, and neither B is a subset of C or C is a subset of B. So these are overlapping set. Similarly, we can see here A intersection C, which is not empty, and we can see here there is common element are in A and C are 6 and 12. So we can see here these are overlapping set and their intersection is not empty, and neither A is a subset of C and nor C is a subset of A. Now students, we will solve left hand side. What is left hand side? A intersection B union C. सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होता है B यूनियन C. B यूनियन C मतलब सबसे पहले हमने दो सेट्स का यूनियन लेना है, और B का यूनियन और C के साथ लेने के लिए सबसे पहले हम B सेट लिखेंगे, उसके बाद यूनियन फिर C सेट लिखेंगे। अब हम इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आ जाएगा 1 3 5 6 7 9 11 12 15। अब बच्चों, अब आपने इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, और हमारे पास A सेट है 2 4 6 8 10 एंड 12 इंटरसेक्शन 1 3 5 6 7 9 11 12 15। अब हम इसमें से कम सेम एलिमेंट्स जो हैं उनका एक सेट निकालेंगे। आप देख सकते हो कि इसमें 6 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है। 6 और 12 के अलावा कोई और एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो इनमें सेम हो, तो हमारे पास रिजल्टेंट सेट है 6 एंड 12। अब हम इस राइट लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम पर। Now students, Venn diagram we have to represent left hand side A intersection B union C. सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, उसके अंदर हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद हमारे पास उसी तरह सेट A आ जाएगा, और सेट A में के बाद हमारे पास सेट C B आ जाएगा, और हमारे पास इस तरह सेट A रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सर्कल को, सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सर्कल को, और सेट बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड सर्कल को। अब हम इसमें एलिमेंट्स शो करते हैं कि हम एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 8 10, और हमारे पास सी है 15 और बी है 1 5 7 11। अब हम इनके कॉमन एलिमेंट्स को शो करेंगे। ए और सी के एलिमेंट्स जो कॉमन है वो है 6 और 12, और बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 3 और 9। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसमें रिप्रेजेंट करने लगे हैं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का क्या आंसर आता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर बी और सी को यूनियन को हमने लाइंस ड्रा की जो कि रेड कलर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये हमारा ऑपरेशन जो है बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो लाइंस हैं बी यूनियन सी, ये हमारे पास रेड लाइंस रिप्रेजेंट करी हैं बी यूनियन सी को। अब हम ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट सेट क्या आया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेने के बाद। वो आपको याद है कि आपने अभी आपने मालूम किया जिसका हमारे पास आंसर था 6 एंड 12। अब हम इसमें ब्लैक लाइंस जो हैं वो हमारे रिजल्टेंट सेट को रिप्रेजेंट करेंगी कि ये हमारा रिजल्टेंट सेट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 6 और 12 को। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्लैक एंड रेड लाइंस, ये रिप्रेजेंट करी हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, और वो हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 एंड 11। अब आपने देखा यहाँ पर इंटरसेक्शन बी लिया तो वो हमारे पास है एम्प्टी सेट। इट्स मीन देयर इज नो शेड इन दिस ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी विल टेक ए इंटरसेक्शन सी। जब हमने ए इंटरसेक्शन सी लिया तो हमारे पास है 2 4 6 8 10 एंड 12 इंटरसेक्शन 3 6 9 12 15। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हमारे पास है 6 और 12, और जब हम इनका आपस में यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो आएगा 6 और
12। अब हम इसको वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया। अब हम बच्चों सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करते हैं। हमने कितने सर्कल ड्रा करने हैं? हमने 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं जो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने ड्रा किया सर्कल ए और उसके बाद सर्कल सी, फिर सर्कल सी। अब ये हमारे पास सर्कल ए सी बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें? ये सर्कल ए जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, और उसके एलिमेंट हमारे पास 2 4 8 10, और उसके बाद सी के हमारे पास 15, और फिर बी के हमारे पास 1 5 7 9। ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 और 12 को, और बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 और 9, और ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं 6 और 12 को। अब हम इनका रिजल्टेंट सेट हमने देखा कि हमारे पास क्या आता है। हमारे पास 6 और 12 वो है जो जिस पर ये लाइन्स हैं, और ये लाइन्स हमारे रिजल्टेंट सेट को रिप्रेजेंट करिए। और आपको याद है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास इसका एम्प्टी सेट आया था, इसलिए हमारे पास ए और सी में कोई शेड नहीं होगा, ए और बी में कोई शेड नहीं होगा। इसलिए हमारे पास ए और सी में हमारे पास जो शेड होगा वो इसका कॉमन रीजन होगा जो कि 6 और 12 है। तो इसलिए हम इसे ये कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस रेड लाइन को, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आपने देखा दोनों में कॉमन रीजन हमारे पास 6 और 12 है। तो हम इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं? हमारे पास इससे ये रिजल्ट निकलता है कि हमने देखा फिगर 1 और फिगर 2 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो कि इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ योर होम असाइनमेंट exercise 1.3 question number 3b. You have to verify distributive law of union over intersection of sets. Verify distributive law of intersection over union of sets. Again, I repeat it. You have to solve exercise 1.3 question number 3 part B. Here third part, verify distributive law of union over intersection of sets, and fourth part you have to verify distributive law of intersection over union of sets. तो बच्चों आपने ये असाइनमेंट्स आपने घर में प्रैक्टिस करनी है इसी लॉ को फॉलो करते हुए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।